और उसके बाद पंकज सर बोलेंगे और उसके बाद This call is now being recorded. And Honorable Chairperson Madam of Jayoti Vidyapeeth Women's University, we are delighted to welcome you all on behalf of the whole fraternity of Jayoti Vidyapeeth Women's University. It is a matter of pride that our visionary leader and our think tank of the university, Sir Dr. Pankaj Garg sir, is a speaker, and a collaborative activity is going to be held here today, and the matter that is more relevant and convergent as per the need of the industry, as per the need of the society, and as per the need of the stakeholders is going to be discussed today. And Dr. Modi and his team, I hope, is prepared to insist the topic that has already been decided. And we are going thankful to the Government of India, MHRD, and other agency who have given this opportunity to organize this conference. One thing in the beginning, I would like to share, by the permission of the chair, that Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, is a research-led vibrant university. It has NAC B+ grade under 7-point scale. This is the single women's university in India having 12BA status. And this university has more than 40 patents published and around 1400 research papers university has published successfully. The research and innovation as well as the community development of the university is widely appreciable by each and every corner of the society. Recently, this university has just written a landmark in the history of academic activity, and students of interns of BAMS, BHMS, and BANYS of Faculty of Ayurveda and Faculty of Homeopathic Science took part in the community development activity, and the activity was for you can say immunity booster, and our students visited in different part of the university adopted villages. So this is the exercise that is continuing going on, and university has a very, you can say, conscious collaboration with different international universities that are they are based in USA, France, Germany, and other part of the world. So now I request to Honorable Founder and Advisor sir that kindly please put the facts that is related to the meaningful convergent of the today's conference. Sir, Dr. Pankaj Garg sir. सर आवाज नहीं आ रही है। आज जो नेशनल लेवल वर्कशॉप संस्कृति फाउंडेशन एंड महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट वेंचर में यूनिवर्सिटी के सहयोग से जो कंडक्ट हो रही है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बिकॉज जब भी कभी बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस और सोशल दोनों को सेपरेटली देखा जाता है हमारे सोसाइटी में, हमारी थिंकिंग में। सोशल का मतलब समझा जाता है कि इट इज द चैरिटेबल, मीन किसी को चैरिटी कर दो, भोजन करा दो, किसी को कपड़े दे दो, किसी की मदद कर दो, दैट्स कॉल्ड द चैरिटी सोशल एक्टिविटी। बस खत्म, फिनिश।
और बिजनेस का मतलब जरूर ये कुछ ना कुछ इसका हित इसके अंदर होगा, इसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, इसका मतलब ये बिजनेस कर रहा है। तो हर व्यक्ति को दो रूप से देखा जाता है। अल्दो हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, या जो राइटरों ने बुक्स में लिख दिया, जिसको हमने पढ़ा, वो भी हमने अपना व्यक्तित्व दो ही रूप में डिवाइड करा, या तो हम चैरिटी कर रहे होंगे या हम बिजनेस कर रहे होंगे। आज की जो वर्कशॉप है, इसमें उन दोनों शब्द को मिला दिया गया है। अगर आप गौर से देखें, उसका नाम है सोशल इंटरप्राइज बिजनेस प्लान। मतलब सोशल के साथ चैरिटी करते हुए, किसी की मदद करते हुए आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या उसका प्लान होगा। आज की वर्कशॉप इसमें है, और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर मोदी साहब, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद है, हमारी मौजूद हैं, हमारे टीचर्स मौजूद हैं। तो आज का जो वर्क है ये कलेक्टिव वर्क है। हम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, मोदी साहब अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन सेशन है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर के मन में कोई भी क्वेरी हो तो वो मोदी साहब से या मुझसे, जिससे भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सोशल इंटरप्राइज के बारे में, बिकॉज आवर यूनिवर्सिटी मिशन इज द एजुकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो मिशन आज से 12 वर्ष पूर्व लिख दिया गया था कि एजुकेशन वो ही कराई जाएगी हमारे यहाँ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में सहायक हो। हमारा जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं, उसके आउटकम्स पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो ही हम अपनी बिटियाओं को बताएं, पढ़ाएं, जो किसी न किसी कम्युनिटी में सहायक हो, उसके डेवलपमेंट में सहायक हो। आज जब ये बात चल पड़ी है कि सोशल इंटरप्राइजेस भी होनी चाहिए, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अब तक हम अपना परिदृश्य समझते आए हैं कि या तो व्यक्ति चैरिटी करता है तो बिजनेस नहीं करता, और बिजनेस करता है तो चैरिटी नहीं करता। हमको एक ऐसा मॉडल लाना है कि समाज की सेवा भी हो जाए, उन लोगों की भी सेवा हो जाए जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है, और बिजनेस भी हो जाए, हम एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप भी हो जाएं, और प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स मार्केट को, इंडस्ट्री को दे पाए। छोटे से उदाहरण, आप अभी किसी विलेज में जाते हैं कोई सोशल एक्टिविटी करने, आपने देखा कि जब आप वहां गए तो हो सकता है एजुकेशन नहीं हो उनके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं हो, उनको बोलना नहीं आता हो, साफ कपड़े नहीं पहन रखे हो, हाइजीनिक उनका प्रॉपर नहीं हो, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं हो, तो शायद हमारे मन में एक ही बात आएगी कि सोशल एक्टिविटी करते, ऐसा करते, कुछ कपड़े इनको दे देते हैं, बहुत ज्यादा करो तो सिग्नेचर करना सिखा देते हैं। कुछ इस तरह की ही बात आएंगी, और हम उनको बड़े दयनीय दिशा से ही देखेंगे कि नहीं, ये हम देने वाले और वो कृपा लेने वाले। इस थीम के साथ हम उस विलेज में एंटर करेंगे। आज की जो वर्कशॉप है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जब एक्सपर्ट ने बुलाया है तो, कि हमें ये बताना है कि हम वहां कैसे बिजनेस कर सकते हैं, उनके सहयोग से वो लोग जो हैं उनको उस स्ट्रीम में डालकर। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ गांव से कुछ लैंड हम ले लें, उसके पास में ले लें, और एक कोई वेंचर एस्टैब्लिश कर दें, कोई एक फैक्ट्री लगा दें, या गवर्नमेंट से कह के फैक्ट्री लगवा दें और उन सबको रोजगार दे दें। कोई हेल्पर बन जाएगा, कोई प्योन बन जाएगा, कोई ड्राइवर बन जाएगा, वटेवर, और सोशल एंटरप्राइज हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया, सबको नौकरी मिल गई। नहीं, ये स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि फिर वहां बात उठेगी लोकल को जॉब दो, बाहर वाले को जॉब मत दो, बाहर वाले को दो, लोकल को नहीं दो, सो मेनी एस्पेक्ट्स। अब जो मिनिस्ट्री ने कदम उठाया है, हमारी काउंसिल ने कदम उठाया है, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन ने, उसका कहीं ना कहीं ध्येय ये है कि हम इस तरह के बेंचेस एस्टैब्लिश करें जहां 100%
सहयोग, भागीदारी इन विलेजर्स की हो, रूरल बैकग्राउंड के लोगों की हो, और बिजनेस भी डेवलप हो जो कि सस्टेनेबल बिजनेस हो, और उसमें किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो। एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। सपोज करिए आप किसी विलेज में जाते हैं, तो एक तो तरीका था कि आपने उनको कुछ ना कोई सामान दे दिया और उनकी जो दशा है, जो भी उनकी स्थिति है, उसको कवर अप करने के लिए। एक तरीका ये है कि हम उनको स्किल्ड करें। हम कोशिश करें कि सबसे पहले हम उनसे डिस्कशन शुरू करें, बातचीत शुरू करें। हम जिस जीवन में वो रह रहे हैं, जिस परिदृश्य में वो रह रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, और हम अंडरस्टैंड करें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अगला हमारा स्टेप होना चाहिए कि जो उनके अंदर हिडन, जो भी टैलेंट है उनके पास हिडन, किसी के पास कोई गुण है, किसी के पास कोई गुण है, उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अगर नीड है कुछ स्किल की, पॉलिशिंग की, बिकॉज वी आर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और आप स्टूडेंट्स हैं, आप आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, तो आपको भी अपनी स्किल के बारे में जानकारी होगी कि हम क्या कर सकते हैं। आप उनको उसमें स्किल्ड करें, पॉलिश करें, और पॉलिश करने के बाद उनके प्रोडक्शन में हेल्प करना शुरू करें। अगर आप उनको साथ में लेके कोई भी प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो वो प्रोडक्शन मार्केटिंग कैसे होगा, ये आपके पास खुद की पॉलिसी होगी। और मार्केट करने में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी मार्केटिंग में आप ये जरूर शामिल करें कि ये मटेरियल डेवलप्ड या प्रोड्यूस बाय द विलेजर्स। अगर आप इस थीम को साथ में लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन आपका बना रहेगा और मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। बिकॉज आज का जो सिनेरियो, और उसमें भी कोविड ने जो और सिनेरियो कर दिया, तो हर किसी को जो आवश्यकता है, वो आवश्यक है ऑर्गेनिक, नेचुरल चीजों से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट। और उसमें भी अगर वो विलेजर्स बना रहे हैं, तो एक मन के अंदर भावना आती है कि नहीं, यहाँ चीटिंग नहीं होगी, यहाँ जो भी हमारे पास प्रोडक्शन आ रहा है वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, तो लोग उसको खरीदना भी चाहेंगे। इस तरह से आप अपने वेंचर्स डेवलप कर सकते हैं, और जो विलेजर्स है, जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, उनका उसमें समावेश भी कर सकते हैं उस बिजनेस मॉडल में। उन लोगों को हेल्प मिल जाएगी अपने जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाने की, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी, और आपका अपना वेंचर चल पड़ेगा। इस पूरे वर्क में आपको आपका डेवलपमेंट होना सुनिश्चित है, क्योंकि आप सोशल इंटरप्राइज में हैं, तो आपको लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, ये भी डेफिनेट है, क्योंकि आपने उनके घरों को बसाया है, बनाया है, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया है, और प्रॉफिट तो आपको होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात है, आपके पास ये जो वर्कफोर्स है, ये वर्कफोर्स कभी स्ट्राइक नहीं करेगी, ये वर्कफोर्स कभी आपको पैनिक नहीं करेगी। जितना इसमें आपको ये भी नहीं चिंता करनी कि कोई आपके मॉडल को चुरा लेगा। आप सबसे पहले उनकी जब स्किल को पॉलिश करें, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपसे उम्मीद है, और आप ज्योति विद्यापीठ के हैं, तो आपको आईपी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, तो आप जरूर उसके अगर कोई यूनिक है तो उसको जियोटैग कराएं, या उसको पेटेंट लें, या कॉपीराइट कराएं, जिससे कि या ट्रेडमार्क लें कोई भी प्रोडक्ट है आपका, और एज ए एंटरप्रेन्योर आप डेवलप हो। तो आगे आने वाला जो समय है वो अब रूरल इंडस्ट्री, विलेजेस, इस पर डिपेंड होगा, और होम प्रोडक्ट। देखिए, बाहर जो लोकल है वहां का मटेरियल,
उससे बना हुआ प्रोडक्ट सस्ता भी होगा और आपको कहीं से लेबर को माइग्रेट नहीं करना। मतलब इससे इतनी सारी परेशानियां बचती हैं और हम इसके रोल मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। हमारे यहाँ स्टाफ की स्ट्राइक नहीं होती, हमारे यहाँ हमें चिंता नहीं होती कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे आसपास के विलेजर्स ही हमने ट्रेन करके अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट करे हुए हैं। अब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ विलेज टूरिज्म पे काम करने जा रहे हैं, जहां हम इस जो टेक्निक हमने आपको भी बताई है इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मोदी साहब, हम जो है हमने जो विलेजेस अडॉप्ट करे हैं उन विलेजेस के नाम कुछ प्रोडक्ट कर दिए हैं, वहां की इसी प्रोसेस को अपनाकर सर्वे करके उनके हिडन टैलेंट को जानकर कोई विलेज हमारे यहाँ पिकल बनाएगा, कोई विलेज हमारे यहाँ विनेगर बनाएगा, कोई पापड़ मगोड़ी अचार बनाएगा। इस तरह के हमने उनको डिवाइड कर दिया है और सबसे बड़े इसके खरीदार हम हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं चिंता करनी कि प्रोडक्ट कहाँ सेल होगा। उस गांव के आसपास जो भी इंडस्ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट को पहचानिए, उसकी रिक्वायरमेंट को जो गांव है उसकी स्किल से कोरिलेट कर दीजिए सिर्फ, जिससे बहुत लंबा ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं देखना। एग्जाम्पल, आज हमारे यहाँ 1700 बिटिया रहती हैं हॉस्टल में। मीन हमको 500 लीटर दूध की आवश्यकता है, मीन हमको डेली फ्रेश वेजिटेबल की आवश्यकता है, हमको पिकल की आवश्यकता है, अचार की, पापड़ की। हमको किस चीज की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा शहर है। अगर ये सब प्रोडक्ट यहीं बनने शुरू हो जाएं तो हमारे विलेजर्स को एक अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और आप जैसे कितने ही बच्चे उसमें एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए सोशल एंटरप्राइज बिजनेस प्लान आप लोग बनाकर अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं और हमको सप्लाई मिल सकती है। आज हम मार्केट पर डिपेंड हैं, अगर इस तरह के बिजनेस मॉडल आ गए तो हम जैसे यूनिवर्सिटीज जो रेजिडेंशियल हैं एज वेल एज जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको आपके छोटे छोटे बिजनेस मॉडल हेल्पफुल होंगे, फ्रेश चीज देंगे और सबसे बड़ी बात है उसके सामने लिखा हुआ होगा ऑल प्रोडक्ट मेड एज ए होममेड पैटर्न, जो है ऑर्गेनिक है, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से तैयार करे हुए हैं। और एक टूरिज्म डेवलप होगा, जो नियर बाई लोग होंगे वो भी उन विलेजेस में जाएंगे उस काम को देखने के लिए कि आखिर ये ट्रेडिशनल पैटर्न से किस तरह से तैयार हो रहे हैं। मे बी वो टूरिज्म भी डेवलप हो जाए और डायरेक्ट सेलिंग भी शुरू हो जाए। तो इस तरह के कई प्लान हैं भारत सरकार के कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को अभी से इस तरह के बिजनेस प्लान सोचने पे मजबूर करें, उनको फील दें, सेंसिटिव बनाएं, जिससे कि वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। मैं बस अब विराम करूंगा। जो हमारे विश्वविद्यालय की जो पॉलिसीज में चल रहा था केवल मैंने वो इंकित किया है, बाकी ग्लोबली नेशनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और क्या चाहती है वो सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर मोदी साहब, डॉक्टर विवेक मोदी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी वर्कशॉप को आगे लेके जाए। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो माननीय डॉक्टर गर्ग साहब, विद्यालय आपके यूनिवर्सिटी के अन्य प्रोफेसर्स और मैनेजमेंट की टीम और सारे विद्यार्थी जो कि इस मीटिंग को बड़े ही अटेंशन से, मैं देख रहा हूँ कैमरे में, बहुत ही ध्यान से अटेंड कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार और इस मीटिंग में प्रेजेंट रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। एक निवेदन है कि मेरे अलावा अन्य सभी लोग थोड़े समय के लिए अपना माइक म्यूट कर देंगे तो थोड़ा डिस्टरबेंस कम रहेगा। अब मैं लगभग अगले आधे घंटे से 40 मिनट बात करूंगा और इससे पहले कि मैं विषय शुरू करूं, मैं एक तो नवीन जी है, डॉक्टर श्री नवीन कुमार जी हमारे MG NCRE से रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे टीम के मेंबर है,
वो भी प्रेजेंट है, उनकी उपस्थिति में एक्नॉलेज करूंगा। नवीन जी जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, आगे बढ़ाइए। सभी को मेरा सादर प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं नए साल का। थैंक यू नवीन। जी हाँ, मैंने सुना है एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्रोफेसर। ही हैज एक्चुअली गिवन a very important points like needs, challenges, response to the challenges, fulfillment of the needs, and thereby scaling up the entrepreneurship slowly and steadily. Thank you very much, sir. Yeah, over to Dr. Vivek ji. या डॉक्टर जी आप म्यूट पे हैं, विवेक जी आप म्यूट पे हैं। या यस आई हैव अनम्यूटेड। थैंक यू नवीन जी। सबसे पहले मैं एक्नॉलेज कर दूं कि जब मेरी डॉक्टर पंकज जी से बात हुई तो आई कुड फील अ डिफरेंट एनर्जी। बहुत सारे लोगों से बात होती रही है, लेकिन जो एनर्जी, जो पॉजिटिविटी और जिस एंथुजियाज्म से सर ने रिस्पॉन्ड किया, नॉट ओनली ही रिस्पॉन्डेड, ही ऑल्सो ऑफर्ड that if we need more resource person, we are having that. That is commendable and we really respect that. We really appreciate that, sir. Your enthusiasm is contagious and we can see it. हम इस चीज को देख सकते हैं, सारे विद्यार्थी कितने ध्यान से इस बात को सुन रहे हैं। तो उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम में बड़े जोश से भाग लेने का एक मन बनाया और अपने लोगों को भी प्रेरित किया। अब 2-3 बिंदु फटाफट मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं हूँ कौन, संस्कृति फाउंडेशन क्या है, ये कार्यक्रम क्या है, एक संक्षिप्त में 5 मिनट में उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया क्या होता है और उसमें विद्यार्थी अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो बड़े संक्षिप्त में हम 30-40 मिनट में ये पूरा विषय समाप्त करेंगे। स्टूडेंट्स के पास अगर कुछ प्रश्न हो तो वो नोट कर सकते हैं और जैसे ही मेरा वक्तव्य समाप्त हो, वी आर ओपन टू हैंडल द क्वेरीज। साथ ही साथ मैं बता देता हूं, जो चैट बॉक्स है उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक हमारी टीम से डाला गया है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन भरें, कृपया अपनी स्पेलिंग्स वगैरह ध्यान से रखें, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन लेटर ऑन प्रिपेयर होगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू है तो उसकी काफ़ी वैल्यू है। आप ज़रा उसको संभल के भरिए, सारे विद्यार्थियों से ये निवेदन है। तो सबसे पहले तो मेरा नाम विवेक मोदी है और मैं पेशे से, मैं एजुकेशन से एक चिकित्सक हूँ। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है एडमिनिस्ट्रेशन में। लगभग 6 वर्ष मैंने कॉरपोरेट में काम किया और सन 2010 से मैं पूर्णकालीन एक वेलनेस एजुकेटर, एक प्रोफेशनल स्पीकर के रूप में कॉरपोरेट्स में और अनेक संस्थाओं में भारत भर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, अपनी वर्कशॉप करता हूँ। तो बेसिकली काम डॉक्टर का ही है, लेकिन बीमार होने से पहले लोग बीमार ना पड़े वो काम मैं करता हूँ। तो संस्कृति फाउंडेशन क्या है उसके बारे में मैं जल्दी से कुछ विषय बता देता हूं। और संस्कृति फाउंडेशन, हम लोग एक रिसोर्स पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है इस कार्यक्रम को करने के लिए, उसको फुलफिल कर रहे हैं। MGNCRE का ये कार्यक्रम प्रमुख रूप से है, लेकिन हमारा एक हर साल कैंपेन चलता है जो कि नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में 1 महीने का कैंपेन होता है, जिसको हम बोलते हैं बी गुड डू गुड कैंपेन, विवेक बैंड के नाम से। तो एक संक्षिप्त में 5 मिनट में मैं संस्कृति फाउंडेशन का परिचय देके फिर आगे बढ़ता हूँ। अभिनव जी, आप प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे? जी शेयर कर रहा हूँ। तो जो संस्कृति फाउंडेशन है ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सन 2010 से हम लोग कार्यरत है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख लक्ष्य है कि भारत की कल्चरल जो हमारी विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए देश के लिए कैसे हम युवाओं की एनर्जीज को अच्छे से चैनलाइज करते हुए कुछ काम कर सकें, इस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। और इस प्रयास को करते हुए हम बहुत सारी कैंपेन चलाते हैं। उसके अंदर एक कैंपेन है विवेक बैंड, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले दूसरे कैंपेन्स बता देता हूँ, जैसे योगा फॉर यूथ, योग फॉर यूथ। तो 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे है, उसमें हम प्रमुख रूप से युवाओं को प्रेरित करते हैं कि योग से जुड़ें। उसके अलावा गिफ्ट फ्लैग कैंपेन होता है, जिसके अंदर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सिंबल
जो हमको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य की याद दिलाएं, उसके लिए हम उसको गिफ्ट करते हैं बहुत सारे ऑफिसेज में लोगों को, और एक तरीके का प्लेज लेते हैं कि हम देश हित में काम करेंगे। इसी के साथ हम जैसे राखी फॉर सोल्जर, हमारे जो सैनिक बंधु है वो ऐसा फील नहीं करे कि देश की जनता हमारे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो रक्षाबंधन के दिन आपके जैसे कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थी मिल के यहाँ के जो भी सैनिक छावनी वगैरह है वहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं, सैनिकों के पास जाते हैं, वी डिस्प्ले अवर सॉलिडारिटी। हम बताते हैं कि हम आपके काम के लिए आपको सलाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके साथ में खड़े हैं। तो इसके अलावा एक और कार्यक्रम हम करते हैं। हाँ बोलिए। पीपीटी प्रेजेंट हो रहा है। नहीं, पीपीटी नहीं दिख रहा है अभी तक। एक मिनट। हाँ, आप आराम से कोशिश कीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ। हाँ, हो गया। हाँ, एक और कार्यक्रम हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं संस्कृति संवाद। संस्कृति संवाद के अंदर दो प्रमुख लक्ष्य है। एक तो जो युवा लोग हैं, कॉलेज के लोग हैं, उनमें इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में कुछ जागरूकता है, और दूसरा उनमें अपने विचारों को अच्छे से प्रेजेंट करने की शक्ति और तार्किक शक्ति विकसित हो, ओरिजिनल थिंकिंग विकसित हो। तो हम उसमें क्या करते हैं, संवाद में कॉलेजेस में एक विषय लेते हैं और स्टूडेंट्स को उस पर डिबेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। रिसोर्स पर्सन रहता है, फैक्चुअल जो भी फैक्ट्स है, डेटा उनको प्रोवाइड कराते हैं, और दो टीम उसमें डिबेट करती है। हम ये नहीं बताते क्या सही है क्या गलत है, ये उनको निश्चय करना होता है, लेकिन हम उनको इतना गाइडेंस देते हैं कि फैक्चुअली क्या सही है, फैक्चुअली क्या गलत है। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है वो सारे उसमें सहयोग कर, और उसके बाद उनको गाइडेंस देते रहते हैं समय समय पर। सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड वर्कशॉप्स, जहां उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, लीडरशिप डेवलप हो, एंटरप्राइजिंग डेवलप हो, ये सारी चीज़ों का हम प्रयास करते हैं। उसके अलावा एक जो कैंपेन जो हम आज कर रहे हैं उसका नाम है विवेक बैंड 2021। स्वामी विवेकानंद के नाम से और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से जो उनका एक स्लोगन है, डू गुड एंड बी गुड, बी गुड एंड डू गुड, उसी थीम पे ये कैंपेन चल रहा है। अभिनव जी, प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है क्या? तो उसी थीम पे हम वो कैंपेन चलाते हैं, और उस कैंपेन में ये हमारा 5वां कंटिन्यूस कैंपेन है। अनेक प्रकार के हो रहा है। ओके, ओके, आप सब लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन? समहाउ आई एम नॉट एबल टू सी इट। एक मिनट, हाँ दिख गया, ठीक है। इसको आप स्लाइड शो में कर सकेंगे अभिनव जी? F5 दबाइए, F5 दबाएंगे तो ये स्लाइड शो में आ जाएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। तो विवेक बैंड में क्या है, बेसिकली कैंपेन ये है कि युवाओं को अच्छा बनने और अच्छा करने के लिए प्रेरित करें, और इसके लिए कुछ ना कुछ कॉज हो। इस साल का कॉज क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल। हमें हमारी समस्याएं खुद ही हल करनी है। हम कब तक ताली बजाते रहेंगे कि सब चीजें विदेश से आ रही है और आने के ऊपर हम खुश होंगे? हमारे देश में युवाओं की कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज भी बहुत है, नेचर भी हमारे साथ में है। अभी डॉक्टर पंकज जी ने इतना शानदार उदाहरण दिया कि पास के विलेजेस में अपने रिक्वायरमेंट देखें, आपको सीधा सीधा एडवांटेज है, ट्रांसपोर्टेशन एडवांटेज, माइग्रेशन रुक जाता है। बहुत सारे ये एडवांटेज लेते हुए आज हम देखें तो भारत में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो इस साल का जो हमारा कैंपेन है वो एंकरेजिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और ये MGNCRE के सहयोग से हम इस कैंपेन के माध्यम से देश भर के अनेक कॉलेजेस में कर रहे हैं। मैं आपको थोड़े से पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा। अभिनव जी जल्दी से स्लाइड चेंज करेंगे। ये पिछले कुछ सालों के विवेक बैंड के आपको दिखेंगे। ये बच्चों ने जो हाथ में रिस्ट बैंड पहन रखा है, इस पे विवेक बैंड, बी गुड डू गुड कैंपेन और स्वामी विवेकानंद के सिग्नेचर एक तरीके का सिंबल है जो युवाओं को याद दिलाता है कि हमें स्वामी जी की प्रेरणा से कुछ ना कुछ अच्छा करना है देश के लिए। लास्ट ईयर के कुछ जो विवेक बैंड इवेंट्स हैं उनमें आप देखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था। इसी तरीके से जो हाँ बताइए, अंडर प्रिविलेज जो होते हैं कई जगह, चिल्ड्रन, बस्तियां, कृपया म्यूट कर दीजिए, किसी का अनम्यूट हो गया गलती से, आप म्यूट कर दीजिए। तो ये सारे हमने इस प्रकार के प्रोग्राम के आगे बढ़िए अभिनव जी। और ये कुछ इमेजेस है, लास्ट ईयर हमने 100% वोटिंग प्रमोट करने के लिए किया था। और ये जो लेफ्ट साइड में आप इमेज देख रहे हैं, इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस जी की इमेज दिखेगी। तो एक ये बात सभी लोग थोड़ा ध्यान से नोट करें,
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती रहती है। तो उस समय इस कार्यक्रम का ये जो कैंपेन होती है, विवेक बैंड कैंपेन, और ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन है, इसके लिए हम एक इवेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं विवेक सुभाषितम। विवेकानंदा और सुभाष चंद्र बोस के नाम से विवेक सुभाषितम। और उस कार्यक्रम में आप में से जो भी लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब के लिए एक मौका है नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन लेने का। तो आज मैं जो अभी प्रस्तुत करूंगा उसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उस समय हमारी माननीय रक्षा मंत्री थी, और साथ में और भी सारे डिग्निटरीज है, पद्मा अवार्डीज है, काफी सीनियर डिग्निटरीज है। तो ये एक कार्यक्रम हम कुछ सालों में एक बार करते हैं जिसके अंदर हम जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी होता है, आगे का पिक्चर दिखाइए अभिनव जी। तो ये कार्यक्रम ऐसे लोग जो इंटेलिजेंशिया है, जो बहुत समर्थ लोग हैं, जिन्होंने बहुत सक्सेस देखी है, उनको भी हम जोड़ते हैं। इन्हीं में से हमारे रिसोर्स पर्सन आते हैं, ये आगे जाके विद्यार्थियों को, अभिनव जी मैं बोलूं नहीं तब तक आगे मत बढ़ाइए। इन्हीं में से बहुत सारे लोग जो है आगे जाके हमको मदद करते हैं, युवाओं को प्रेरणा देने में। लर्न फ्रॉम लीडर्स एक हमारा कार्यक्रम चलता है जिसमें इनमें से कुछ लोग आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बताते हैं कि मैंने कैसे अपना बिजनेस डेवलप किया, मुझे क्या क्या समस्याएं आई, किस प्रकार से हम आगे बढ़े लाइफ में। तो इससे युवाओं को एक रियल टाइम स्टोरी, किताबी नॉलेज नहीं, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, उनका गाइडेंस मिलता है हमको और उनका सपोर्ट मिलता है। तो ये जो कार्यक्रम है ये कुछ सालों में एक बार होता है। इस प्रकार से संस्कृति फाउंडेशन काम करती है। अब इस कैंपेन पे आ जाते हैं कि ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारी अभी कैंपेन चल रही है, वाई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और ये कार्यक्रम क्या है। तो सभी विद्यार्थीगण थोड़ा अच्छे से सुने इसमें क्या क्या करना है आपको। देखिए, आपको कोई एक, अभी आप रुक जाइए अभिनव जी, मैं बोलूं नहीं तब तक आगे मत बढ़िए, ठीक है ना, उसको पीछे कीजिए, प्लीज होल्ड इट। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने लोकल एरिया की कोई भी समस्या अगर समझ में आए, जिसमें कोई बिजनेस प्रपोजिशन हो, मतलब जिससे हम अपना करियर भी बना सकें, कुछ पैसे भी कर सकें और समाज की भी कुछ सहायता कर सकें, ऐसी कुछ योजना, इसमें कितना बड़ा होगा ये बात की बात है। पहली बात यह है कि आप में क्या वो सोच है, क्या वो दृष्टि है क्या, या फिर जैसे कि अधिकांश लोग सिर्फ एक ही रट में रहते हैं, नौकरी करना नौकरी करना नौकरी करना। आज हमें पता है कि जितने युवा है उतनी नौकरी हमारे पास नहीं है, और निकट भविष्य में भी उतनी नौकरी शायद नहीं हो। लेकिन अगर युवा एंटरप्रेन्योरशिप को ले ले हाथ में, तो वो जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बन जाएगा। वो खुद तो अपना काम करेगा और साथ में 2-4 लोगों को और मदद करेगा जीविकोपार्जन में, साथ ही साथ देश की बड़ी समस्या हल करेगा। तो इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, मैं थोड़े से 2-4 उदाहरण देता हूं और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। आगे बढ़िए अभिनव जी, नेक्स्ट स्लाइड। हमको सबसे पहले तो प्रॉब्लम टॉकर से सॉल्यूशन सीकर बनना है। सॉल्यूशन सीकर बनना है। प्रॉब्लम टॉकर क्या है, हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हैं हम बात करते रहते हैं, और फिर हम उसका कारण क्या है वो भी बताते रहते हैं। तो कभी हमने किसी को ब्लेम किया, कभी किसी को ब्लेम किया, हम ये ब्लेम करते हैं। सिस्टम कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और इतना बड़ा विशाल देश इतनी विविधताओं से भरा है, तो इसमें परफेक्शन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, गलतियां निकालने में अपना बहुत अधिक समय निकाल लेते हैं। लेकिन क्या हम सॉल्यूशन सीकर है? क्या युवाओं के रूप में हमारी सोच ऐसी है कि हम खुद से पूछे कि भैया आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की? आप आज ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने इतना अध्ययन किया है, आपको कुछ ना कुछ तो समाज ने दिया है यहाँ तक लाने के लिए, तो आपने वापस देने के लिए क्या किया? क्या आपका एक लाइन का उत्तर यही है कि मुझे नौकरी नहीं मिली, या आपने कुछ आगे भी हाथ पांव चलाया इसके लिए? तो सबसे पहले इस सोच की आवश्यकता है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के मूल में क्या सोच होती है? अभिनव जी 1 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन रोकिए, मैं फिर से जब बोलूंगा फिर हम लाएंगे उसको एक बार मैं, ताकि सबको देख भी सकूं। प्रेजेंटेशन केवल रोक दीजिए, आप स्क्रीन पे आके शेयरिंग स्टॉप कीजिए। तो विषय इसमें यह है कि हमारी सोच किस तरीके से होनी चाहिए। एक छोटी सी रियल टाइम स्टोरी में बताना चाहूंगा, उससे खाली एटीट्यूड क्या होना चाहिए वो समझ में आएगा। तो छाया ठाकुर नाम की एक छोटी बहन थी, बहुत ही छोटी क्लास में, गुजरात में गांधीनगर के पास में किसी गांव के अंदर विद्यालय में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी।
और मेरे ख्याल से वो 8वीं क्लास से भी छोटी कक्षा में थी। और उसने क्या देखा कि जब दूसरे विद्यार्थी पानी पीने के लिए स्कूल के वहां जो टंकी बनी हुई है वहां से पानी पीने के लिए जाते हैं, तो वो नल की हाइट इतनी ज्यादा है कि छोटे बच्चों का हाथ उस नल तक नहीं पहुंचता है। वो हाथ से ऐसे पानी पीते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में तो मैं भी राजस्थान से ही हूँ वैसे, मूल था, अभी हैदराबाद में हूँ, लेकिन तो हमने तो स्कूल में ऐसे ही पानी पिया, और आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने शायद वो अनुभव किया हो। तो छाया ठाकुर ने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो पहुंच ही नहीं पा रहे नल तक, और अगर पीने की कोशिश करते तो या तो गीले हो जाते हैं या फिर कोई दूसरा बच्चा उसको ऐसे गोदी में पकड़ता है और उसके बाद वो छोटा बच्चा पानी पी पाता। तो छाया ठाकुर को लगा कि इस समस्या को क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कैन आई डू समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उसने एक बहुत छोटा सा काम किया। जो ऐसा हॉरिजॉन्टल पाइप था, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल पाइप था उसको उसने कुछ तरकीब लगा के थोड़ा टेढ़ा कर दिया। उस पाइप पे बहुत सारे नल लगे हुए थे, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसमें सारे नल है, तो उसने उसको टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा किया तो क्या हुआ, एट वन साइड टैप्स केम लोअर, एक साइड में नीचे आ गए, एक साइड थोड़े ऊपर चले गए। तो जो छोटे बच्चे थे वो इस सिरे से पानी पी सकते थे और बड़े बच्चे इस सिरे से पानी पी सकते थे। जब ये किसी ने अनुभव किया कि छोटी बच्ची ने किसी छोटे दूसरे बच्चे की समस्या को, पीड़ा को महसूस किया, और महसूस करके उसके बारे में सिर्फ कंप्लेन नहीं की, सिर्फ प्रॉब्लम टॉकर नहीं बने, सॉल्यूशन सीकर की तरह उसका सॉल्यूशन निकाला। छाया ठाकुर की इस काम के लिए उसे एक्नॉलेजमेंट मिला। आज उसके नाम से एक पेटेंट है, इंक्लाइंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर टैप्स, हनी बी नेटवर्क के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया। और हमारे उस समय के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने छाया ठाकुर को सम्मानित किया। आप में से बहुत लोगों को लग सकता है क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि उस छोटी सी बच्ची ने ये संवेदना दिखाई, उसने ये भाव दिखाया कि मैं किसी भी हद में, किसी भी रूप में क्या मदद कर सकती हूँ, और वो मदद करके दिखाई। ये जो भावना है ये एक हिस्सा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसके अंदर हमको ये बताना है कि आई केयर फॉर द सॉल्यूशंस, टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम इन माय एरिया। I will not just keep on talking about problem, I will find out solution. I will not be the part of the group which is problem talker, but I will become a part of the group which is solution seeker and above all action taker. Moment this comes, आपके लिए करियर की अथाह संभावनाएं हैं। और आप सभी विद्यार्थी तो भाग्यशाली है कि डॉक्टर पंकज गर्ग की सोच रखने वाले एडवाइजर्स, आप संरक्षक आपके साथ में हैं, और आपकी टीम, आई एम श्योर, आई कैन सेंस इट, कि ये जो सोच है ये सभी को प्रभावित करेगी पॉजिटिव रूप में। तो सबसे पहले ये सोच आप लाएंगे। अभिनव जी एक बार फिर से प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे हमको जीविकोपार्जन कैसे होगा, क्योंकि सारी बातें बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन आखिर में तो हमको कुछ ना कुछ अर्थोपार्जन करना है, हमारी अपेक्षाएं हैं, तो नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे। तो कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा बहुत लोगों ने किया है और उन्होंने अच्छा करियर भी बनाया है। ये कुछ सिंपल आइडियाज है, और मुझे डॉक्टर पंकज को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। सैनिटेशन से संबंधित हो गया, प्लांटेशन से संबंधित हो गया, मल्टी यूज वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और युवाओं में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। आप थोड़ा सा भी इसमें लगेंगे, कुछ दिनों के लिए भी अगर लग के टीम वर्क करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे बिजनेस प्रपोजिशन इसमें मिल जाएंगे। कंपोस्ट प्रिपरेशन, जो कि हम घर में कर सकते हैं, सब्जियों का जो कचरा होता है, फ्रूट्स का जो कचरा होता है, चाय पत्ती वगैरह जो होती है, उन सबको हम एक पॉट में डाल के 3 पॉट कंपोस्टिंग, आप अगर गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कैसे करते हैं। अब आपको बड़े लेवल पे कैसे करना है, स्केल कैसे करना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है, लेकिन वो भी संभव होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आगे बढ़िए अभिनव जी, नेक्स्ट स्लाइड। यस, व्हाट इट टेक्स। देखो 3 चीजें बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आइडिया सिंपल रखिए। आप इतना बड़ा आइडिया शुरू में मत लीजिए जिसमें आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए।
जिसमें आपको लगे कि नहीं, हमको तो हजारों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट पहले चाहिए, तो क्या होता है, आइडिया शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमको एक कारण मिल जाता है कि हम इसको क्यों नहीं कर सकते। छोटे छोटे पॉकेट फ्रेंडली मिनी स्टेप्स लेते हुए आप आगे बढ़ें। जैसे ही आपको लगे कि ये वायबल है, तो आपको बहुत सारी परियोजनाएं होती है, बहुत सारी सरकार की भी आर्थिक मदद मिल सकती है बाद में। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि सार्थक रूप से, सिस्टमेटिक रूप से, एंटरप्राइजिंग दिमाग लगाते हुए कैसे सिंपल आइडिया, सोशल एंगल लेते हुए, छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़े। और सबसे ज्यादा एडवांटेज जो स्टूडेंट लाइफ का होता है वो होता है समय का। अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो जब तक आपका जो पढ़ाई खत्म होगी, आप बहुत सारी चीजों को अनुभव कर चुके होंगे। एंड व्हेन यू गेट इनटू योर करियर आफ्टर एजुकेशन, यू विल बी रेडी टू बी लॉन्च्ड। आपके कॉलेज में तो, आपकी यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं इस प्रकार के। तो जिन्होंने किया है, आप उनसे भी थोड़ा टच में रहे, ताकि आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कुछ समस्याओं का उन्होंने सॉल्व किया है। आगे बढ़िए अभिनव जी। अब ये कुछ एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का, जहां पर लोगों ने, आगे बढ़िए, क्या किया कि जब अकाल पड़ा और वहां के लोग फसल से कुछ जीविकोपार्जन नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये काम शुरू किया, जूट बैग। अब ये जो जूट बैग है, ये इतने पॉपुलर हो गए, इनके जो जितने भी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस होती है उन सब में ये जूट बैग बहुत पॉपुलर हो गए, ये सब जाते हैं। साथ में अचार बनाना, जैसे अभी सर ने भी बताया था। तो ये सारी चीजें, हम लोग कुछ दिशा निर्देश अगर करें, हम लोग कुछ इस सोच को जाकर और आसपास के गांवों में, आसपास के कस्बों में उनकी समस्याओं को समझें, और जैसे डॉक्टर पंकज ने बताया, पहले वहां की आवश्यकताएं समझें और उसके बाद उसके अनुसार हम हल निकालें, तो जैसे ही आप उसको स्केल करेंगे, आपको जॉब से अच्छा खासा पैसा इसमें मिल सकता है, और साथ में आपको जो संतुष्टि मिलेगी, जो फुलफिलमेंट मिलेगा, वो एक एक अलग ही अनुभूति होती है। आगे बढ़िए अभिनव जी। ऐसे ही कुछ और है, ये आप देखेंगे, इन्होंने एजुकेशन पे काम करना था, तो इन्होंने एजुकेशन पे काम करने के लिए, एक कपल है, उनके पास पैसे की कमी आई, तो उन्होंने नीव हैंडमेड सोप बनाना शुरू किया, हर्बल सोप जो होता है, और बहुत बड़े लेवल पे आज ये काम होता है, और उससे जो पैसा आता है उसको एजुकेशन में लगाते हैं, जो वंचित लोग हैं जिनके पास इतना, और साथ ही साथ ऐसा काम करते हैं कि जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। आगे बढ़िए, इसके कुछ पिक्चर्स आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सारी महिला शक्ति है जो कि इस काम को बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से कर रही है। और आगे बढ़ेंगे अभिनव जी। अब ये कुछ बड़े बड़े आइडियाज है, ये भी आपको बता देता हूं कि इसका कितना बड़ा स्कोप हो सकता है। आप देखिए, मेकिंग यूज ऑफ, आगे बढ़िए अभिनव जी, इस स्लाइड को नीचे तक लाइए। मेकिंग यूज ऑफ डिस्कार्डेड कार्टन बॉक्सेस। अब आरंभ नाम के एनजीओ है, उन्होंने क्या किया है, ये जो कार्टन बॉक्स जो फेंक देते हैं लोग बाग कई बार, उनको इकट्ठा किया बड़े लेवल पे और उनसे बेंचेस बनाई, और स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो बेंचेस प्रोवाइड की। बहुत बड़ा अब आरंभ का काम हो गया। ऐसे मधु पंडित दास ने क्या किया कि जब देखा कि बहुत सारे लोग भूख से तड़प रहे हैं, जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं, मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषित है, तो इनके अंदर संवेदना जागी और इन्होंने उनके लिए एक एक योजना बनाई कि हम कैसे लोगों को ये खाना प्रोवाइड कर सके। तो सारे आईटी लोगों से मिलकर इन्होंने अक्षय पात्रा नाम की संस्था बनाई। आज वो लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन दिलवाते हैं। ठीक है ना, सहयोग समाज से ही मिलता है। तो जब आप बहुत सारे लोगों की मदद करने निकलते हैं तो आपकी मदद होती है। एक कोट है, एक बहुत बड़े स्पीकर हुए हैं, उन्होंने कोट ये था, उनका एक कोट है कि इफ यू हेल्प इनफ पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। If you help enough people to solve their problem, then your problem will automatically be solved. तो समस्या क्या है? रोजगार नहीं है, ठीक है, मैं कितनी मदद कर सकता हूँ। ये आप ध्यान रखिए, देना और लेना ये दोनों प्रकृति के नियम है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लेने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और उसके लिए उनको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब तक देने वाला नहीं आए हम लेंगे कैसे। लेकिन जो लोग देने पे फोकस करते हैं उनका साइकिल जल्दी शुरू हो जाता है। आप देते जाएंगे, देना तो अपने हाथ में। अब आप सोचेंगे हम तो विद्यार्थी, हम क्या देंगे, पैसे नहीं है। आपके पास शिक्षा है, आपके पास बहुत सारा एक एक नेटवर्क है, आपके पास युवा शक्ति है, समय है। इस सब का आप चैनलाइजेशन अगर करेंगे तो आप बहुत कुछ दे सकते हैं। और जब आप देंगे, यू फोर्स द नेचर, यू फोर्स द प्रोविडेंस टू रिटर्न। ये तो चक्र है। तो
लेने से ज्यादा अगर फोकस हमारा देने पे आ जाता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे देंगे तो वो भी एक प्रकार का दान है। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ समस्याओं का आप सॉल्यूशन में लगते रहेंगे तो आपको भी मिलेगा और निश्चित मिलेगा। ठीक है। अरुणाचलम मुरुगनाथम, इनके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है, कैसे इन्होंने लेडीज में फीमेल हाइजीन के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए कोशिश की और सस्ते लेवल पे उन्होंने सैनिटरी नैपकिन्स बनाए। इस पे तो एक अक्षय कुमार की पिक्चर आ चुकी है, आपने शायद देखी भी होगी। तो ये भी एक एंटरप्राइजिंग काम है, एक समस्या का समाधान किया और अच्छा करियर भी बना इससे। आगे बढ़ेंगे अभिनव जी। सो हाउ विल इट हेल्प अस? अब सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, एज ए स्टूडेंट आप लोगों को सीधा सीधा प्रश्न आपका ये हो सकता है, सर हमने ये अटेंड किया, अब इससे हमको क्या मिलेगा? देखिए, अटेंड करने से तो हो सकता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाए, लेकिन हमको सर्टिफिकेट से ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि वास्तव में हमने क्या किया। तो अब हमारा आपसे ये निवेदन है कि विद इन द रिसोर्सेज अवेलेबल विथ योर सेल्फ, आपके पास जो भी आज अवेलेबल है रिसोर्सेज, और सबसे बड़ा रिसोर्स है आपकी बुद्धि। अगर आप मिलकर, अगर आप अपना ध्यान कोई एक समस्या आपके एरिया की सॉल्व करने में लगाते हैं और उससे कुछ बिजनेस प्रपोजिशन बनाते हैं, इसमें इवन ट्यूशन देना भी शामिल हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ट्यूशन देने में आप हेल्प कर रहे हैं समाज की, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको कोई ना कोई समस्या हल कर रहे हैं, और उसमें आप मान लीजिए कोई शुल्क ले रहे हैं और इसको आप थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इस प्रकार के आपको बिजनेस प्लान बनाने हैं, और प्लान बनाना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट उसको पेपर पे अच्छे से बता के ये हमारा प्लान है। आप प्रेजेंटेशन रोक सकते हैं अभिनव जी, आप उसमें बता सकते हैं कि ये प्लान है, इससे इतने लोग इम्पैक्ट होंगे, ये समस्या का समाधान हो रहा है। ऐसा हमने एक पूरा फॉर्म बनाया है बाकायदा, जिससे आपको मदद मिलेगी कि किसी भी प्रकार का बिजनेस प्लान को लिखना कैसे है, बनाना कैसे है। तो वो जो गूगल फॉर्म होगा उसमें आप अपना प्लान पहले अपने कॉलेज लेवल पे आपको सबमिट करना है। कॉलेज लेवल पे सबमिट करने के बाद जो भी उसमें से बेस्ट 3 प्लान्स होंगे वो आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे MGNCRE के थ्रू, और उसके अंदर से जो भी अच्छे प्लान्स होंगे उसको न सिर्फ एक अलग से रिकॉग्निशन मिलेगा, हमारा पूरा प्रयास है कि उसको हम हर प्रकार की मदद करके आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। 23 जनवरी को जो कार्यक्रम होगा उसमें भी सम्मिलित होंगे आप, तभी ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है। और उस कार्यक्रम के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा सिर्फ आपका प्लान देखकर कि हाँ ये प्लान प्रैक्टिकल है, ये समस्या सॉल्व हो रही है। उसके लिए ऑफ कोर्स एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें 2 लिंक आपको गूगल फॉर्म में डाले हैं, एक तो जिसमें आपका डिटेल चाहिए सर्टिफिकेट के लिए, और दूसरा जिसमें आप अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं। हमको आप भेजेंगे तो ठीक है, लेकिन आप पहले अपने कॉलेज लेवल पे आपकी जो टीम है उनको आप बताएंगे, और उसमें से जो सेलेक्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा, और उसके बारे में आपको MGNCRE से गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से उसका सिलेक्शन होगा। तो मौका क्या है? सर्टिफिकेट्स, और दूसरा अपने करियर के लिए एक प्लान बनाकर सभी से सहयोग लेते हुए, अच्छे रिकॉग्निशन लेते हुए, नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्लान को प्रेजेंट करने का मौका पाते हैं। तो ये इसका बेसिक शॉर्ट टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म आपको में क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा? संस्कृति फाउंडेशन जो है, हमारा काम तो यही है कि हम युवाओं की जितनी मदद कर सके करते रहें। तो यह क्रम 23 जनवरी को समाप्त नहीं होता है। संस्कृति फाउंडेशन हमेशा, यहाँ हम बहुत सारी कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, और आपके कॉलेज में जैसे कि डिजाइन थिंकिंग पे वर्कशॉप करना है, अब आपको इस प्रकार की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो डिजाइन थिंकिंग बहुत काम की चीज है। डिजाइन थिंकिंग क्या है? सही समस्या को पहले ढूंढना, उसके लिए क्या सोच चाहिए। तो आज डिजाइन थिंकिंग कॉर्पोरेट लेवल में बहुत बड़े लेवल पे चलती है, तो हम आपको डिजाइन थिंकिंग का बहुत अच्छा वर्कशॉप दे सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स का वर्कशॉप दे सकते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे करना है वो बता सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है वो बता सकते हैं। ये सारा संस्कृति फाउंडेशन बड़े ही अच्छे नेशनल लेवल के जो स्पीकर्स है, ट्रेनर्स है, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस पे हमारा कोई शुल्क नहीं रहता है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम आपकी मदद करें अधिक से अधिक, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि रेसिप्रोकेशन है, एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो हम कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले। हम इस संदर्भ में आपको जितनी अधिक हो सके मदद करते रहेंगे। संस्कृति संवाद में आपकी कॉलेज पार्टिसिपेट कर सकती है,
पूरे राजस्थान के अंदर आसपास की कॉलेजेस को आप लीड कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे उसके लिए योजना है। जितनी आपकी शक्ति है, जितना पैशन आप दिखाएंगे, जितना जोश आप दिखाएंगे, हम उससे दुगना रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इतना हम संस्कृति फाउंडेशन से करते रहेंगे, ये बात मैं आप सबसे बताना चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। मुझे इतने ध्यान से सुना आप सभी ने, उसके लिए धन्यवाद। Yeah, Dr. Modi, we had some curiosity, and we are interested in you. And the curiosity is that how you start your presentation within 2 and 3 lines for the students of the university. You know, they are young and they are learner. They are from technical and professional streams. So, how do you feel that this long presentation is going to be concluded within 3 and 4 lines for the students? This presentation within 3 and 4 lines. Yes. Okay, you mean you want to convey it to more students for that purpose? Yes. Okay. तो उनको आपको ये बताना है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस प्लान का एक प्रकार का कंपटीशन है, उसमें सम्मिलित होने का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है, एक अवसर है, और उसके लिए आप अपने बिजनेस प्लान बनाइए। ये सारी गाइडलाइंस है जो कि गूगल फॉर्म में आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमारी MGNCRE की टीम हमेशा आपको अवेलेबल है, और जैसे ही वो बिजनेस प्लान डालेंगे हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। बाकी तो आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, आप ये भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर मोदी सर। हाँ सर। मेरे को एक ऐड करना है। Our universities provide the incubation and innovation center also. तो अगर आपके पास कोई ऐसे प्लान हो, हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो वो ओपन है। फ्रॉम करंट ईयर वी आर स्टार्ट अदर देन आवर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी। अगर कोई ऐसे बिजनेस प्लान है जिनको फाइनेंशियल कोई इशू है या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्योंकि हमारे यहाँ सभी फैकल्टीज हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, engineering, management, law, pharmacy, all of the programs at single roof for girls. So we have developed the innovation center and incubation center also. Philanthropy club is also. तो so many लोग, जो मैंने भी अपने बात में बताया भी था, नंबर ऑफ कंपनीज अपना CSR फंड हमको देती है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फंड का कोई इशू नहीं। We are the universities included in 12B of UGC Act, means हम गवर्नमेंट ग्रांट के लिए भी एलिजिबल हैं। ओनली 12 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जिनके पास ये स्टेटस है, उनमें से एक हम भी हैं। तो आप चूंकि इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, सब इंस्टीट्यूशंस के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जब बिजनेस प्लान डेवलप हो जाते हैं तो उसको आगे एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है। वहां आप चाहें तो वो हमको ट्रांसफर कर सकते हैं और हम उसमें पूरी मदद करेंगे और अपने यहाँ उसको इंक्यूबेट करेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे। राइट नाउ वी हैव द 22 स्टार्टअप्स। 22 स्टार्टअप्स हमारी बिटियाओं ने रजिस्टर्ड कराए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, वो चल रहे हैं, उसमें पार्ट टाइम जॉब करती हैं। पर आवर 40 रुपीज पर आवर, 30 रुपीज पर आवर, 20 रुपीज पर आवर, ये उनके चार्जेस हैं जो अदर देन एकेडमिक्स वो लोग लेते हैं। तो इस तरह के जो भी हैं हम उसमें करने को तैयार हैं, क्योंकि ये मैंडेट हमारा 2008 से है, लोकल का कम्युनिटी डेवलपमेंट का। हम यूनिवर्सिटी बने ही इसके ऊपर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है इस सब में काम कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं लोगों से। तो हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें अवश्य बताइएगा। जी। See sir, this is again a pleasant thing to have from people like you, that you are there to support. और ये हमारा भी हौसला बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, किसी को कुछ सैलरी पे काम नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपने मन से काम कर रहे हैं। और जब हमें ऐसा एक कोई हाथ देने वाला मिलता है तो हमको भी बहुत सहयोग मिलता है। आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑफर के लिए, और मैं जरूर अपनी टीम तक आगे ये बात पहुंचाऊंगा कि किस तरीके से हम मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से हम लोग हमेशा तैयार है। अगर आपको लगे कि कहीं भी हमारी कुछ आवश्यकता है तो आप निसंकोच हम तक पहुंच सकते हैं। हम हमारे बूते में जो भी है जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपको एक इनफॉर्मल इनविटेशन, वैसे तो आपको मैं अलग से बात करूंगा, 12 जनवरी को जो ये सारे कॉलेजेस है
उनके प्रिंसिपल्स, चेयरमैन, फाउंडर मेंबर्स जो भी है, मैनेजमेंट से सीनियर लोग, कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे जो सीनियर डिग्निटरीज हैं उनके साथ में। तो उसमें एनजीएनसीआरई के चेयरमैन सर, यूजीसी से भी सीनियर डिग्निटरीज रहेंगे, उसमें एआईसीटी से भी कोई ना कोई रहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको इनफॉर्मली इनवाइट कर रहा हूँ। बाकी तो मैं आपसे बात करके उसका डिटेल भेजूंगा, वो भी ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो उसमें भी निवेदन है कि आप सब उपस्थित रहें। वो सिर्फ फैकल्टी मेंबर के लिए और आपके लिए सर। हम हमेशा तैयार। थैंक यू। और अपने आप मॉडल जिसमें काम कर रहे हैं वो सब डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे, तो आपको भी बताने के लिए रहेगा, क्योंकि ये बिटियाओं की यूनिवर्सिटी है और यहाँ ये बिटियाई करती हैं सब। अभी 1 तारीख को इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम बुला ली और प्रोबेबली 1 या 2 दिन के अंदर रिकॉर्ड बनने जा रहा है उनका। वहां से लेटर आ चुका है, अवार्ड देने वो आ रहे हैं। तो ये इस तरह के काम न जाने आसपास के विलेज, 10 विलेज इन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं, खूब करती है। तो ये सब इनके रस रस में बसा हुआ है। तो आपकी यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक तरीके से दूसरों को बताने के लिए भी रहेगी कि देखिए इस तरीके से भी काम होता है। आप एक अभी जो आपने वेस्ट मैनेजमेंट का बताया, 2 इयर्स बैक मतलब 18 में हमको 8th रैंक मिला था इस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे कैंपस से एक चीज बाहर नहीं जाती, सब रिसाइकिल होती है, सब रिसाइकिल होती है। ऑल्दो ये एयर फॉल होते हैं ना, हम इसको भी नहीं छोड़ते, इसको भी सेल आउट कर देते हैं। अमीनो एसिड्स बनता है बिल्कुल। ऑनरेबल फाउंडर एंड फैकल्टी मेंबर ये जानना चाहते हैं कि सर का, ऑनरेबल फाउंडर एंड एडवाइजर सर का थॉट प्रोसेस लैब में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है और हमारी कुछ छात्राएं आज पहली बार जुड़ रही हैं जी ये इस आयोजन में। तो वो ये जानना चाहती है कि सर के द्वारा एक थॉट प्रोसेस लैब में हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट पढ़ा है जिसमें ये था कि जो भी जॉब में लोग जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो या जिस तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर के जॉब हो, उसमें जाने के पहले एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए और सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीरियड्स होना चाहिए कि कितने दिन उनको गांव के लोगों के बीच में जाके काम करना है, फिर किस तरह से क्या क्या है। तो थोड़ा सा हम निवेदन करेंगे कि उस पर कुछ प्रकाश करें। ये तो खैर हमारी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्टिव मैटर है, ये तो प्लेटफॉर्म दूसरा था। खैर मैं बता देता हूँ जब आपने प्रश्न पूछा है। यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं जिसमें जो कि कंपल्सन है हर सेमेस्टर में बच्चों को कंडक्ट करनी होती हैं, वो जो विलेजेस में जाकर ये कंडक्ट कर रहे हैं उसका जो सर्टिफिकेशन है, उस सर्टिफिकेशन में हमने इस बार से आर्ट्स भी मेंशन करना शुरू करवा दिया है। तो जब आर्ट्स मेंशन होंगे तो उसका जो ग्रैंड जो टोटलिंग होगा क्रेडिट के साथ, वो आर्ट्स का भी होगा। वहां ये अपने उस गवर्नमेंट जॉब में इस चीज को प्लेस कर सकते हैं। एज वेल एज जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए तो ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम अब बहुत जरूरी है। मतलब सर तो खुद मॉडर्न साइंस है, मैं BHMS डॉक्टर हूँ सर, आयुष डॉक्टर। हाँ ये पता नहीं था मुझे। तो ऐसे में अब हम पे सवालिया निशान उठा इस बार कोरोना के में कि हम लोगों को कम्युनिटी एक्टिविटीज या कम्युनिटी हेल्थ में इतनी नॉलेज नहीं होती। तो कई इस बार मैंने वो इंक्लूड कर दिया है। काम तो सब कर ही रहे हैं, क्योंकि जो एक स्लोगन चाहिए हमारी आम पब्लिक को, जो हमारी गवर्नमेंट को, तो इस तरह से उसका सर्टिफिकेशन सेपरेट होगा कि आपने इतना टाइम विलेज में, इतने आवर्स विलेज में बिताए, विलेज एक्टिविटीज के रूप में बिताए, और मेडिकल को मिलेगा तो उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में बताया। अब मेरे ख्याल से मोदी साहब का टाइम समय हो गया है। हाँ। और मोदी साहब हम एक साथ एक शिक्षक के रूप में आपसे शेयर करना चाहेंगे। हम यहाँ शिक्षक हैं कि हमारे जो संस्थापक महोदय हैं BHMS के तो डॉक्टर हैं, लेकिन साथ साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यंगेस्ट फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी का खिताब भी दे रखा है। ही इज आवर मेंटर, he is a very good researcher, entrepreneur, as a very complete human being. डे बाय डे बोलने तो हमारा टाइम आ गया।
हमारा तुम्हारा टाइम चला गया। आपको बोलने दो, सर से कोई बात पूछनी है मोदी साहब से तो बच्चों को कहो, पूछ ले सवाल। हाँ बच्चों पूछो। मोदी साहब से अगर आपका कोई सवाल है स्टूडेंट्स प्लीज, आपके कोई सवाल है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, यू कैन रेज योर क्वेश्चन। आप सीधे पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? Any student, any question? Any other participants? Or respected colleagues? Yes, please. It seems there is no question. Call from Dr. Lakshmi Prasanna. अगर प्रश्न नहीं है तो मेरे ख्याल से हम समाप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। और वैसे जहां पर पंकज जी जैसे एडवाइजर है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हमारा रोल भी होगा। और इसी फीडबैक बहुत कुछ हमें लर्न करने को मिलता है। जी बहुत धन्यवाद। Thank you all of you for being such a warm presence, for bringing such a warm presence, and hopefully आपका कॉलेज से हमको कुछ अच्छे बिजनेस प्लान इस संदर्भ में मिलेंगे। और 23rd को डेफिनेटली ज्योति विद्यापीठ का नाम वहाँ रहना चाहिए ऊपर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, सभी का धन्यवाद।